never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks. Isn't that spitting slow, spitting fast? I can roast, I can gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to say today, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead of say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. एक बार जोरदार तालियों के साथ अपने बेटे अपने भाई का स्वागत करें, इनका हौसला बढ़ाएं। आप सबसे आशीर्वाद लेने के लिए आपके बेटे आपके भाई देवेंद्र कादम जी आपके बीच में आए हैं और आप सभी ने, सारी मातृशक्ति ने, युवा साथियों ने, पिता तुल्य बुजुर्गों ने जो फूल मालाओं के साथ जो दिल खोलकर अपने बेटे अपने भाई को आशीर्वाद दिया, जो ताकत देने का काम आपने किया है, ये ताकत ये ऊर्जा आप सबकी सेवा में लगाई जाएगी और यही ताकत इस गनौर हलके के विकास में लगाई जाएगी। अभी कुछ हमारे सम्मानित जो मंच पे हैं वो पगड़ी के साथ अपने बेटे का स्वागत करेंगे। हमारे बीच में पंडित सुभाष जी, पंडित जगदीश जी,
और पंडित संदीप जी पहलवान और सतबीर जी रविदास समाज से, मुकेश वाल्मीकि जी और रामकुमार जोगी जी, ये सारे सम्मानित पगड़ी के साथ अपने बेटे का मान सम्मान बढ़ाएंगे। हमारे बीच में पंडित सुभाष जी, पंडित जगदीश जी होंगे, पंडित जगदीश जी को दे दो, पंडित जगदीश जी, पंडित संदीप जी पहलवान सतबीर रविदास समाज से और मुकेश जी वाल्मीकि समाज से और रामकुमार जोगी जी, ये पगड़ी के साथ, और महावीर जी, ये सभी पगड़ी के साथ अपने बेटे का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। और ये जो पगड़ी का मान सम्मान होता है, ये हमारी हरियाणा की संस्कृति में सबसे बड़ा मान सम्मान माना जाता है। और इस गांव की सरदारी ने जो जिम्मेवारी की पगड़ी अपने बेटे के सिर पे रखी है, ये बेटा भी इस जिम्मेवारी को बेखूबी निभाएगा और इस गांव के विकास में, इस गांव के मान सम्मान में कोई भी कसर नहीं छोड़ेगा। एक बार जोरदार तालियों के साथ इन सबका स्वागत करें, मान सम्मान बढ़ाएं। और ये गांव के जो पिता तुल्य बुजुर्ग, ये मातृशक्ति, ये युवा साथी जो दिल खोलकर आप समर्थन कर रहे हैं अपने बेटे अपने भाई को, जो आशीर्वाद प्यार देकर इनका जो ऊर्जा और ताकत बढ़ाने का काम आपने किया, ये काबिले तारीफ है। और ये बेटा आपका भाई हमेशा आपका आभारी रहेगा। और ये जो मान सम्मान आपने दिया है, इस मान सम्मान का बदला आपकी सेवा करके लेगा और आपकी इस गांव की सेवा में कोई भी कसर नहीं छोड़ेगा। अभी हमारे बीच में जोगिंदर स्वामी भाई, हमारे युवा साथी भी पगड़ी के साथ अपने भाई का मान सम्मान बढ़ाएंगे। हम सभी पिता तुल्य बुजुर्गों का, सभी का हम दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। जो अपने अपने बेटे अपने भाई को इतना मान सम्मान दिया, इतना प्यार दिया, ये काबिल तारीफ है। और ये बेटा सदा इस मान सम्मान का सदा आपका आभारी रहेगा और आपकी सेवा में कोई भी कसर नहीं छोड़ेगा। पंडित संदीप जी पहलवान, ये भी हमारे युवा साथी, ये भी पगड़ी के साथ अपने भाई का मान सम्मान बढ़ाएंगे। हम संदीप पहलवान जी का भी दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। और पंडित सुभाष जी, पंडित जगदीश जी, सतबीर जी रविदास समाज से, मुकेश वाल्मीकि जी, रामकुमार जोगी जी, महावीर जी, जिन किसी ने भी अपने बेटे का पगड़ी के साथ मान सम्मान बढ़ाया, हम सभी का दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं कि आपने अपने बेटे को ताकत, नई ऊर्जा देने का काम किया है और इतना मान सम्मान आप सभी ने दिया। एक बार अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले हमारे बीच में प्रधान जी, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे बीच में जो प्रधान जी भाई मिंटू सरपंच जी, वो भी पगड़ी के साथ अपने भाई का मान सम्मान बढ़ाएंगे। हम प्रधान जी का भी दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं, जिन्होंने अपने बेटे अपने भाई को ताकत ऊर्जा देने का काम किया। अभी इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं सभी से निवेदन करूंगा कि एक बार जोरदार दोनों हाथ उठाकर आपको नारे लगाने हैं। उसके बाद देवेंद्र भाई अपने विचार हम सबके बीच में रखेंगे और पूरे जोश के साथ नारे लगाने हैं, दोनों हाथ उठाकर। भारत माता की, भारत माता की। और अभी एक बार थोड़ी सी दिल से आवाज निकालनी अपने भाई अपने बेटे के लिए और इस समाज सेवी के लिए। मैं आपको बोलूंगा देवेंद्र कादन, आप आगे बढ़ो, आपको दिल से आवाज निकालनी है, हम आपके साथ हैं। और ये आवाज और ये गूंज पूरे गनौर विधानसभा क्षेत्र में जानी चाहिए और ये आवाज भी आपके दिल से निकलनी चाहिए। देवेंद्र कादन, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। देवेंद्र कादन, आप आगे बढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, जोरदार तालियां एक बार अपने लिए कर दीजिए जो आपने इतना मान सम्मान बढ़ाया। आप सभी का दिल की गहराइयों से हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। अभी अंकल जी हैं, इनके कुछ अपने विचार हैं, ये विचार हम सबके बीच में रखें। मेरी सभी भाइयों से और सभी छोटी बहन बेटियों से सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, सबसे हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है, मैं जैसे श्री कादेमान जी का जयकारा करूं तो सभी एकदम से बहुत जोर से, ताकि मेरे भूरी गांव में आवाज पहुंच जाए। आपकी बहुत बहुत धन्यवाद। और कादन महाराज जय हो, बोल कादन मेरे बेटे जी की जय हो। पहले मैंने इनके पिताजी जी का नाम लिया था, अब मेरे बेटे का नाम आया है,
इसका हमारे गांव भुर्री में पधारने से मेरे सारे गांव के बहन भाई बेटे बहू बेटी सभी खुश हैं। बोल कादियान जी की, बोल कादियान जी की। लो जी महाराज, बहुत बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी। अभी हमारे बीच में प्रधान जी मिंटू सरपंच भाई, हमारे युवा साथी कुछ अपने विचार हम सब के बीच में रखना चाहते हैं। मिंटू सरपंच जी। सबसे पहले मेरे गांव के बुजुर्ग नौजवान साथी और माताओं बहनों का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि हमारे छोटे से बुलावे के कारण आप भाई देवेंद्र के एक बार मिलकर यहाँ पर उपस्थित हो। उसके बाद हमारे भाई देवेंद्र हैं जो इनके बारे में तो अगर किसी प्रकार की स्पीच देने लगे या इनके बखान करने लगे, जिन हमारे हल्के के लिए जो किया है आप सभी को पता है। और अभी आपने देखा भी होगा, अभी थोड़ी देर पहले जो हमारी वैन में जो इसकी वीडियो चली हुई थी, वे सभी सत्य हैं, बल्कि कुछ कम है। जो इन्होंने किया है उससे वो कम है। इन्होंने हमारे हल्के के लिए बहुत ही बलिदान, लोगों की सेवा तन मन धन से हर तरह से दिन रात एक रखी है। इसलिए मैं आप सभी लोगों को एक सुझाव और एक आशीर्वाद चाहता हूँ भाई साहब के लिए कि आने वाले इलेक्शन में भाई देवेंद्र कादियान को, जितने मेरी माताएं बहनें भाई बुजुर्ग आए हुए हैं, सभी जल्दी से जल्दी सुबह सबसे पहले एक वोट के स्वरूप में अपने भाई देवेंद्र कादियान को आशीर्वाद दे और इनको विजयी बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। अभी समय सीमा का ध्यान में रखते हुए मौसम भी खराब है, मैं देवेंद्र कादियान जी से निवेदन करूंगा कि वो अपने विचार हम सबके बीच में रखें। एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका हौसला बढ़ाएं। अभी सब मिलके जयकारा लगाएंगे। मैं बोलूंगा जय गोरखनाथ की, आपने जयकारा लगाना है। जय गोरखनाथ की, जय गोरखनाथ की, जय गोरखनाथ की। धन्यवाद। सम्मानित मंच पे हमारे प्रधान जी, बड़े भाई सरपंच साहब मिंटू जी, शिव कुमार जी, राम कुमार जोगी जी, रतन जोगी जी, पंडित राजकुमार जी, पंडित संजय जी, पंडित जगदीश जी, महावीर जोगी जी, राधा रागी जी, मुकेश वाल्मीकि जी, सतबीर जी रविदास समाज से, रामफल जी रविदास समाज से, श्रवण भाई, पंडित रामनिवास जी, पंडित सुंदरलाल जी, पंडित जयकिशन जी, राजेंद्र पुनिया जी और बहुत सारे ऐसे युवा साथी, सम्मानित व्यक्ति जिनको मैं कई सालों से, जो मेरे से अच्छे परिचित हैं, उनको स्वयं नाम से चेहरे से जानता हूँ। ऐसे मेरे बहुत सारे साथी, आसपास के सरपंच भी आए हुए हैं, सब सम्मानीय हैं। और हमारी मातृशक्ति, मेरे पितातुल बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबका दिल से और दिल की गहराई से धन्यवाद। विशेष तौर पे इस मातृशक्ति को जिन्होंने गर्मी के मौसम में, बारिश के मौसम में अपने बेटे को, अपने भाई को जो आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं, उनको मैं सबको सिर झुका के नमन करता हूं, नमस्कार करता हूं। देखिए, आज का जो ये प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का विषय आपको पता चल गया होगा। आने वाली 5 तारीख को, एक तो 5 कल परसों में आने वाली है, अगली जो 5 तारीख है, 5 अक्टूबर का दिन, वो हरियाणा में विधानसभा के चुनाव है, आपके गन्नौर में चुनाव है। उस चुनाव के लिए आप सबके बीच में आया हूं। मिंटू भाई ने जैसे बताया, बहुत सारे कार्य आपने इस टीवी एलईडी के माध्यम से और बहुत सारी चीजें, ये जो नौजवान खड़ा है रोहित, इसने भी मंच के माध्यम से आपको बताई होंगी। लेकिन
मैं समझता हूं इस टीवी को भी छोड़ दें और इस मंच की भी बात को छोड़ दें तो बहुत सारे कार्य हमारे सम्मानित हमारी माता बहन बुजुर्ग गरीब वर्ग के भाई ऐसे हैं जिनका हमारी संस्था से संबंध रहा है। किसी न किसी तरीके से उन्होंने हमारी संस्था के माध्यम से लाभ उठाया है, चाहे वो एम्बुलेंस सेवा की बात हो, चाहे किसी गरीब परिवार की बेटी की शादी की बात हो, चाहे किसी खिलाड़ी के सम्मान की बात हो, चाहे किसी बच्चे की पढ़ाई में आर्थिक मदद करने की बात हो, या किसी गरीब समाज के परिवार की किसी भी तरीके की मदद की बात हो। बहुत सारे कार्यों से, बहुत सारे परिवारों से इस संस्था का और हमारा संपर्क रहा है। आपने बहुत लंबे समय से देखा होगा, यहाँ पे हमारे ये ताऊ दादा सारे बैठे, इन्होंने किसी ने 8 बार, किसी ने 10 बार, किसी ने 6 बार, कई बार लोगों को यहां से वोट दिए और जिताया। कई लोग कई बार आपके यहां से चुनाव लड़के गए, लेकिन पहली बार एक आपका भाई, एक आपका बेटा ऐसा जिसने बिना कोई चुनाव लड़े, बिना कोई एमएलए बने, बिना कोई सरकारी पद लिए आप लोगों की सेवा करने का काम किया है, गरीब आदमी की सेवा का काम किया है, एक आम और नरम आदमी की सेवा का काम किया है। मैंने जब शुरुआत की थी, पहली बार जब भूरी गांव में आया था, आपको शायद ध्यान होगा, एक 3 शब्द का मैंने नारा दिया था, नेता नहीं बेटा। पिछले चुनावों से पहले भी इन्हीं दिनों में आया था, उस समय ये जो 3 शब्द थे, नेता नहीं बेटा, उनके बारे में विस्तार से आपके सामने बात रखी थी। मैंने अपने आप को बेटा शब्द इसलिए कहा कि मैं आप जैसे परिवार से, जो मेरे समक्ष हमारी मातृशक्ति बैठी है, ये हमारे चाचा ताऊ बैठे हैं, आप जैसे परिवार से निकलकर मैं यहां मंच तक पहुंचा हूं, इसी भीड़ में से निकल के आया हूं। एक आम परिवार से, एक छोटे किसान परिवार से, एक गरीब परिवार से, हर पीड़ा को, हर दर्द को स्वयं में समझ कर आया। क्या बेरोजगार एक युवा की पीड़ा होती है, जब उसको नौकरी के लिए धक्के खाने पड़ते हैं। मैंने भी स्वयं 2-2, 2.5 साल नौकरी का कागज अपने हाथ में नेताओं के पीछे धक्के खाए नौकरी के लिए। गरीबी को खुद में महसूस किया, किसान का क्या दर्द है वो स्वयं में से झेला हुआ है। ये मातृशक्ति बैठी है, ये बुजुर्ग बैठे हैं, इनको एक अपने प्रतिनिधि से, एमएलए से, मंत्री से क्या आशा, क्या उम्मीद होती है, मैं वहां बैठ के समझ के आया हूं, सुन के आया हूं। मंच पे तो अभी थोड़े दिन पहले ही चढ़ा हूं कुछ सालों से, वरना वहां पीछे कुर्सी में बैठ के बहुत सारे नेताओं के भाषण सुन के आया हूं। इसलिए मैंने नेता उसको कहा जिसने गरीब छोटे किसान परिवार में जन्म लेकर हर तकलीफ को, हर पीड़ा को स्वयं में महसूस किया और स्वयं संघर्ष करके अपनी मेहनत से, अपने पसीनों से यहां इस मंच तक का सफर तय किया। और जो ये बेड़ा उठाया है आप सबकी सेवा करने का, समाज सेवा करने का, इस बेड़े के तहत जैसे मैंने थोड़ी देर पहले गिनवाया, चाहे वो संस्था के माध्यम से हो, चाहे वो मेरे द्वारा हो, तो मैंने एक अपनी सोच, एक अपने विचार, एक अपने भाव, एक अपनी भावना मैंने आप तक 8.5 साल में पहुंचाने का काम किया है कि मैं किस विचार का आदमी हूं, क्या मेरी सोच है, क्या मेरी धारणा है।
वो सारी चीजें इस संस्था के माध्यम से, इन कार्यों के माध्यम से आप तक पहुंची। दूसरा मैंने कहा नेता और बेटा, नेता में क्या फर्क है? नेता वो जिसने नेता के घर में जन्म लिया हो, जिसने सोने की चम्मच मुंह में लेके पैदा हुआ हो, पहले 4 बार 5 बार उनके पिताजी बड़े बड़े पदों पर रहे, फिर वो स्वयं मुख्यमंत्री की कुर्सी के बराबर इतने बड़े पद पे रहा। आगे भविष्य में अपने बेटे का हाथ लेके घूम रहा है कि मेरे बेटे को भी मौका दो। कहने का मतलब मैंने नेता शब्द उसके लिए कहा जो परिवारवाद की राजनीति करते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी परिवारवाद की राजनीति करते आए हैं, मैंने उसको नेता कहा। और बेटा जो आम परिवार में जिसने आज तक ना कोई मेमोरी का चुनाव लड़ा, ना कोई सरपंची का चुनाव लड़ा, मैंने बेटा उसको कहा जिसने आम जीवन जिया हो, जिसको आम आदमी की तकलीफ का पता हो। नेताओं को आपने मौके दिए, 10-10 साल आपने उनको मौका दिया, वो सरकार में भी रहे, उन्होंने किन लोगों का भला किया। वोट लेने की बात हो तो आप सबको 36 बिरादरी की बात, लेकिन जब काम करने की बात हो तो गांव में चुनिंदा एक परिवार पकड़ लिया, 2 परिवार पकड़ लिए, 3 पकड़ लिए, किसी नेता ने 2 पकड़ लिए, दूसरे नेता ने और 2 पकड़ लिए, लेकिन आप सबका क्या हुआ? आपने केवल वोट दी, लेकिन आपकी वोट का फायदा गांव में चुनिंदा परिवारों को हुआ, चुनिंदा परिवारों को। और ये 36 बिरादरी की बात है, 36 बिरादरी की बात है। इसमें चाहे कोई जर्नल में है, चाहे ओबीसी है, चाहे कोई एससी है, नरम आदमी चाहे किसी भी बिरादरी का है, किसी ने साथ नहीं दिया, किसी ने मदद नहीं की। चाहे इसमें कोई हमारा वाल्मीकि भाई है, चाहे इसमें हमारा कोई बैरागी समाज से है, चाहे कोई जोगी समाज से है, चाहे कोई ब्राह्मण समाज से है, नरम आदमी की मदद किसी ने नहीं की। जिसको परमात्मा ने सक्षम बना रखा है, जिसको परमात्मा ने भी मौज दे रखी है, इन नेताओं ने उन्हीं के पास अपना अड्डा बनाया, उन्हीं को लाभ पहुंचाया, उन्हीं से संबंध रखे, उन्हीं के घर में नौकरी, उन्हीं के घर में आना जाना, उन्हीं के घर में खाना। तो इसलिए इस बात का आपको फैसला करना है, जो नौजवान जिसने अपनी शुरुआत नरम वर्ग से की है, मध्यम वर्ग से की है, गरीब वर्ग से की है, आपको उसके साथ जाना है या फिर उसके साथ जाना है जिसने केवल मात्र गांव में 5-7 परिवार छाट रखे हैं, 2-4 परिवार किसी नेता ने पकड़ लिए, 2-4 नेता दूसरे ने पकड़ लिए, जो हमारे मध्यम वर्ग के भाई हैं जिनको वो बेवकूफ बना के वोट डलवाते हैं। कोई कहता है भाई मेरी बिरादरी का हटा दो, कोई कहता है मेरा नजदीकी हटा दो। इस परंपरा को आपने तोड़ना है। और मैं हमेशा बेबाकी से बोलता हूं, खुले मन से माइक में बोलता हूं कि भाई 2 परिवार फलाने नेता के जुड़ रहे हैं, 3 परिवार उसकी गल जुड़ रहे हैं, भाई मेरे से जुड़ के देखो, जब फर्क नजर आओगा तुमने मेरे में उनमें के फर्क से मेरे तक जुड़ के देखो। लोग आते हैं, आप लोगों को धर्म के बहाने, जाति के बहाने, समाज के बहाने इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। मेरे बारे में झूठा भ्रम फैलाया जाता है कि देवेंद्र फलाने समाज के बारे में गलत बोलता है। उनसे मांगो क्या सबूत है, कोई वीडियो दिखाओ, कोई फोन में सबूत दिखाओ, कोई आदमी पकड़ के लेके आओ, या फिर कोई समाज का ऐसा आदमी लेके आओ कि भाई मैं देवेंद्र के पास गया था, मेरे काम में मना कर दिया, मेरा मान सम्मान ना रखा हो, या फिर मेरे को किसी तरीके से दुबात कर दिया हो, सब पकड़ के लेके आओ। मैंने चाहे किसी भी बिरादरी का हो, एससी भाई है, बैकवर्ड भाई है, जाट है, ब्राह्मण है, मैंने सबको 36 बिरादरी को एक नजर से देखा है। जो लोग केवल अपनी सियासत के लिए रोटी सेकते हैं, जो अपने समाज में ये भ्रम फैलाते हैं कि भाई हमारे समाज के खिलाफ बोलता है, उन लोगों से आपको प्रमाण मांगना चाहिए, सबूत मांगना चाहिए। भाई दिखाओ,
या कोई ऐसा आदमी लेके आओ कि भाई देवेंद्र ने ये काम उल्टा किया। इसलिए आपको ये भ्रम तोड़ना है। और जिन लोगों ने, बहुत सारे हमारे ऐसे भाई, मिंटू भाई बैठे हैं, संदीप है, श्रवण है, ये सारे जिन्होंने मेरे को व्रत के देख रखे, जिन्होंने मेरे से काम कराए हैं, जो मेरे पास पिछले कई सालों से मेरे से आते जाते रहते हैं, एक बार व्रत के देखो, जब पता चलेगा। जब तक किसी को बरतोगे नहीं, खाम खाई ऊपरली हवा में कि भाई फलाने ने नुके दी, उड़े नुके दी, केवल वोट की राजनीति करते हैं। वो अपने समाज को गुमराह करने, ताकि चुनाव के समय समाज इकट्ठा हो जाए, वोट कहीं दूर ना जाए, इसलिए वो आपको बांटने का काम करते हैं। आत्मा से मैंने कभी किसी के लिए ना बुरा बोला है, और कोई सबूत हो तो मुझे दिखाओ, सारा गांव राम बैठा है। इसलिए इन चीजों से बाहर निकलना है। इंसान की बिरादरी है इंसानियत। परमात्मा ने हमें बिना बिरादरी, बिना धर्म के उतारा है। ये सारी चीजें जमीन पे आके अलग अलग हुई हैं, भाई इसको ये जाति दे दिया, इसको ये जाति, इसको ये धर्म। इंसान की बिरादरी इंसानियत है, और जहां इंसानियत हो, जहां अच्छे इंसान हो, उसके साथ चलना चाहिए। और जब तक राजनीति में आप अच्छे इंसानों को नहीं लाओगे तो ये ऐसे ही चलेगा। जो ये अड्डे बना रखे, भाई फलाने ने, उस नेता ने उड़े अपने ठिकाने बना रखे, 2-3 परिवार सारे फोन पे उनसे से बात करें, बता भाई के भी होते भुर्रीगा। दूसरा नेता ना वह 2 पकड़ रखे हैं। जो आदमी 36 बिरादरी को एक नजर से एक समान लेके चलेगा, वो लंबा चलेगा। और जो ये काट छाट की राजनीति करते हैं, उनका लंबा सफर नहीं। इसलिए आपको मैं यही बात बोलना चाहता हूं, एक बार जब तक आदमी किसी को बरतेगा नहीं, जब तक किसी से वास्ता नहीं पड़ेगा, केवल राजनीति की कहानी सुन के कि भाई वहां पर ये बोल दिया, वहां पर ये बोल दिया, ये सारी चीजें चुनावी हैं, राजनीति से प्रेरित हैं। मैंने अपनी आत्मा से कभी एक भी किसी बिरादरी को, किसी वर्ग को, किसी धर्म को कुछ नहीं बोला, कभी। और भाई ये फैसला लेना है, मातृशक्ति बैठी है, 36 बिरादरी के लोग हैं। आज तक ये चीजें मंत्री, MP, MLA एक प्रथा बनी हुई है कि भाई मंत्री का बेटा ही मंत्री बन सकता है, CM का बेटा ही आगे चढ़ सकता है। ये बात आपने विचार करना चाहिए। हमारी माता बहन बैठी हैं, क्या मुख्यमंत्री या मंत्री या MLA के घर में ही ऐसी कोख है जहां से MLA बनते हैं, या फिर कोई गरीब किसान का बेटा या उसका परिवार भी है जहां से MLA पैदा हो सकते हैं? इस बात का आपने फैसला किया। इस बात का आपको फैसला करना है। और जहां तक नेतृत्व की बात है, चाहे हमारे केंद्र में हमारी सरकार हो, जो आम परिवार से निकले हुए लोग, चाहे मोदी जी की बात हो, चाहे हमारे हरियाणा में मुख्यमंत्री, बैकवर्ड समाज के मुख्यमंत्री, पहली बार यमुनानगर के एक छोटे से गांव, 1.5 एकड़ का किसान का बेटा, जिसने नीचे जमीन से शुरुआत करी, कभी ब्लॉक में पार्टी का पदाधिकारी बना, कभी जिले में, कभी प्रदेश में, और आज शिखर पे बैठा है, ये वहां पर मुख्यमंत्री की पोस्ट पे बैठा है। ये बैकवर्ड समाज का, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। ये जितनी मूर्तियां मोदी जी से लेकर वहां तक जो लगी हुई हैं, ये सारी की सारी वो मूर्तियां हैं जो आप जैसे परिवारों से निकल कर अपनी मेहनत से, अपने पसीने से वहां शिखर तक पहुंची। चाहे मोदी जी की बात हो, चाहे हमारे मुख्यमंत्री नायब जी सैनी जी की बात हो, ये सब वो मूर्तियां हैं जो आप जैसे गरीब आम परिवारों से निकलकर वहां शिखर तक पहुंचे हैं। इसलिए जो देश का मिजाज है, प्रदेश का मिजाज है, आपने अपने गन्नौर का भी मिजाज वही रखना है। आपका अपना भाई हो, बेटा हो, आप जैसे परिवार से निकल के आया हूं, आपने मुझे आने वाली 5 तारीख को अपना आशीर्वाद देके मुझे आगे बढ़ाना है। मैं 36 बिरादरी को एक साथ लेके चलूंगा, इस बात का वादा करता हूं। आपके आशीर्वाद को अच्छे कामों में लगाऊंगा। थोड़ा देरी से भी पहुंचा, उसके लिए माफी, और थोड़ा लंबा बोल गया, उसके लिए भी माफी, क्योंकि काफी देर से हमारी माता बहन
दाल ढोकली का टाइम है, रोटियां का टाइम है, इसलिए काम के टाइम पे आपका समय लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।